Good morning, students. We will continue our chapter 3rd, population composition. In this chapter, we discussed about the sex ratio, about the age structure, about the rural urban population composition, and now we discussing about the occupational structure. Occupation means the population engaged in gainful employment. It is the category of the employment in which the large number of population, generally it is the working population between the age group 15 to 59, engaged in any type of gainful activities, gainful employments. Active population means the population which is working population, and working population is the age group between the 15 year to 59 year of male and female population. And the another category is the non-active population means part of population which are not engaged in active, like the active or like the gainful employment. For example, some categories are specified, that are children, old people, retired persons, housewives and students. These are the non-active population. In this type of population, children are counting in the non-active because the children, the below age group 15 year, they are unable to engage in any economic activities or any gainful activities. Old people means the population above the age 59 years or the 60 years. They are older person and they are unable to do any type of economic activity. Retired person, in India the retired age is the 58 year, in some departments 60 years. So 58 to 60 years are the retired person. They are the liability of the population. And housewives, they are not worked as a economic or a गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. हाउसवाइफ जो घर में काम करती हैं उन्हें कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता. वो लव, अफेक्शन और उनकी ड्यूटी है कि इसके लिए वो काम करते हैं, तो उनको भी नॉन एक्टिव पॉपुलेशन में काउंटेड किया जाता है. एंड स्टूडेंट्स, दे आर ओनली अचीव द स्टडी, they are not engaged in any economic activity. So these persons are counted as the non-active population, which are children, the below age group of 15 years, old peoples, retired person either in government or in private sector, housewives and students. The UNO unclassified identify some activities as the unclassified categories. UNO ने कुछ जो फील्ड हैं, कुछ जॉब हैं, उनको अनक्लासिफाइड एक्टिविटीज़ में आइडेंटिफाई किया है कि उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता. वो हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हंटिंग. फॉरेस्ट्री मीन्स है कि फार्मिंग, क्रॉप जो है कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करना. हंटिंग शिकार करना, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. क्वेरिंग वो होती है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर से कोई मिनरल्स हैं उसमें से निकाले जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं. और माइंस होती है जो गड्ढे खोद करके अर्थ के सरफेस के अंडरग्राउंड से निकाली जाती है. मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें कोई ना कोई मैन्युफैक्चर होता है, और कंस्ट्रक्शन वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सर्विस, वाटर एंड हेल्थ सर्विस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, storage and communication service. These services are counted as the unclassified category by the
UNO, इनको आइडेंटिफाई किया गया है कि इनको अनक्लासिफाइड किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा है। स्टैम्प पेपर पे लिखो। A simple classification of reducing the above mentioned categories to only 4 is given as follows, कि इन कैटेगरीज को छोड़कर के रिड्यूस करके अगर हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली देर आर 4 कैटेगरीज इन द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज। सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनको 4 कैटेगरीज में, 4 तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटीज़। एंड the agriculture is most primary activity, so this sector is also called the agricultural sector. In this sector, mining, quarrying, agriculture, forestry, animal husbandry, dairy farming and fishing are काउंटिंग एज द प्राइमरी एक्टिविटी। जो भी लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। Secondary activities, after the primary activities, the production is used to making a useful goods or the final goods in the secondary activities in the industrial sector। जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल मिलता है, उस रॉ मटेरियल को, उस प्रोडक्शन को किसी न किसी यूजफुल आइटम में कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्रीज, मिल्स और इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ये गुड्स को कन्वर्ट, प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं गुड्स में। टर्शियरी एक्टिविटीज़, दोज एक्टिविटीज़ विच आर सपोर्ट द प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। दोनों ही तरह की एक्टिविटीज़ को ये सपोर्ट करती हैं। इन दिस एक्टिविटीज़ द बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस and other types of services are involved in the tertiary activities, and these activities are also called the service activities, means इनमें सर्विस मिलती है, सर्विस दी जाती है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज, जब 4 टाइप ऑफ एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन। इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन मीन्स बौद्धिक क्षमता से, अपनी बुद्धि से जो काम किया जाता है, जहाँ थिंक, रिसर्च और डेवलप्ड आइडियाज़, विचार आते हैं, रिसर्च की जाती है, थिंकिंग की जाती है, ये सब बुद्धि के द्वारा होते हैं और ऐसे जॉब्स को क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। लाइक द चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब, लाइक द मैनेजिंग जॉब, like the teaching job, these are the intellectual occupation, means वो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ माइंड का यूज़ किया जाता है, मैनुअल वर्क वहाँ नहीं होता है और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन को, जॉब को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन्हें किसी स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग वगैरह ली हो, दैट इज़ द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। There are so many variations. Yeah, these activities are varies from country to country. In some countries, the more population or large number of population engaged in the primary activities. Primary activities also called the agricultural activities, secondary activities also called the industrial activities, and tertiary activities also called the service activities. तो ज़रूरी नहीं है कि चारों एक्टिविटीज़ हर कंट्री में एक सेम रेशियो में हो। सभी कंट्रीज़ में इनमें एक वेरिएशंस आता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के मोर पॉपुलेशन और लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, एंड in developed countries the secondary activities and tertiary activities has the large number of population, and quaternary activities where the primary activities या primary natural resources are not available, they used only
क्वाटनरी एक्टिविटीज़, इंगेज्ड इन क्वाटनरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़, कि जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेबर नहीं है, वहाँ पर वो लोग जो ये क्वाटनरी एक्टिविटीज़ हैं और सर्विस सेक्टर है, उन्हीं के थ्रू ही अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर लेते हैं। तो जो जीडीपी इन सेक्टर्स से मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड को मेज़र किया जा सकता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, या कौन सी कंट्री पुअर परफॉर्म कर रही है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वेरी बैड है। दैट इज डिपेंड ऑन द जीडीपी गेटिंग फ्रॉम द दीज सेपरेट सेक्टर्स। So students, in this chapter we discussed about the population composition. First of all, we discussed about the sex composition. Sex composition means male population or female population, counting the male population or female population. And some countries use the formula to obtain the sex composition, male population upon female population into 1000, and some countries female population upon male population into 1000। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मेल फीमेल पॉपुलेशन ओवर पर 1000 मेल पॉपुलेशन पर काउंट किया जाता है। तो दैट इज द सेक्स कंपोजिशन। द अदर टाइप ऑफ कंपोजिशन एज स्ट्रक्चर, एज ग्रुप ऑफ द population of that country. There are 3 types of age groups: youth, older and children. Children 0 to 14 year, youth or working population as counting as the 15 year to 59 year, and older population that are above 60 years. And we discussed also about the age sex pyramid, कि पॉपुलेशन के एज सेक्स पिरामिड पे भी हमने डिस्कस किया। व्हाट इज एज सेक्स पिरामिड? एज सेक्स पिरामिड होता क्या है? तो एज सेक्स पिरामिड जो है वो किसी कंट्री के मेल और फीमेल पॉपुलेशन को शो करता है इन द वेरियस एज ग्रुप। वेरियस एज ग्रुप में उनको शो करता है। And then we discussed about the rural urban composition of population, कि रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में कितनी पॉपुलेशन है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट बाई स्टेट, कि देयर इज सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट बाई स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। Not all state and union territories have the same urban and same rural population. बात करें तो इंडिया में गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन कम है और अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो दैट इज़ द रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन। एंड एट लास्ट वी discussed about the occupational structure, कि all peoples are engaged in 4 groups, या तो सभी लोग इन 4 ग्रुप्स में किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। दैट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन।